जब आप एस्केलेटर्स पे हो तो यू ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड, Yeah. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो फास्ट ट्रैक लेन होता है. Yeah. आप खड़े हो जाते हो बस ऐसे रेलिंग पकड़ के, और पीछे लोग कोई बैग लेके चूल घूम करते हुए. तुझे दिख नहीं रहा क्या, तेरे बॉडी के रेडियस में नहीं दिख रहा कि तू. तो तब हमें वहाँ पे एक सरदार जी मिले, तो उन्होंने हमारे लिए बड़ी टैक्सी मंगवाई. वो बोले आप रुको इधर, हम आपके लिए मंगाते हैं. और गाइस, यार वेलकम बैक वंस अगेन. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं इस वक्त जीगन में हूँ कुछ स्टूडेंट के साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ जीगन में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी मास्टर्स. कुछ यहाँ पर 2-2.5 साल से रह रहे हैं और कुछ आए हुए हैं कितना 6-8-10 महीने में, और कुछ 6 ही महीने 6 में. month. आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अगर रीजंस बताने पड़े कि आप जर्मनी में क्यों आए, बिकॉज नॉर्मली जब एक प्रोसेस होता है ना अब्रॉड जाने का, तो लोग बहुत सारे देश सोचते हैं, दे डू विंडो शॉपिंग राइट, कि Yeah. कनाडा में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, फिर बाद में अपन अपना पॉकेट भी देखते हैं. Yeah, right. राइट, Yeah. बाहर देखने के बाद फिर हम अंदर भी देखते हैं. Yeah. व्हाट वर योर रीजंस, इफ यू गाइस कैन लाइक गिव रीजंस कि यहाँ पर क्यों चूज किया और क्यों पढ़ रहे हो जर्मनी में. My first reason was कि Germans are known for their standards in industry. For example, you can say major companies into the automation or automobile industries are Germans, like Siemens or Mercedes, Audi. That was my reason. And another reason was to better quality of life compared to back in India. So For me, the two main reasons to come here are, first is compared to India, I can earn here more, and the second is we have value for work here. Whatever work we do, we get paid fairly for it. What about you? For me, it's traveling. You get to travel to like 29 countries here with the national visa. Now, also in university, you get fellowships and all. You know, you don't have to work much. Like And, for example, like give us an example. here in Ziegen, I applied for a fellowship where I get 300 euros per month. Oh wow, तुम लोगों ने नहीं अप्लाई किया? No, it was through नहीं पता था. professor. वो professor ने भेजा था. अच्छा, okay, nice. And you have that? Yeah. Wow. And this will go on for how long? For 1 year. So, and you are allowed to do part time इसके अलावा? Yeah. You are allowed to take one more fellowship if you get after that. Wow. Okay. Yeah. ठीक है. For me, the main reasons would be a good work-life balance, and also you get 18 months of job search visa after you complete your course, so that is also one of the reasons. Right. And as well, you have more research opportunities in Germany, and you have also research institutions. ये तो अच्छी reasons है. मतलब what do you struggle with as a student? What do you struggle the most तुम्हारे हिसाब से? Mostly struggle with German. Ah. Sometimes I do understand what they say, sometimes I don't. Sometimes they speak really fast. I just miss main points, Right. what they say. Yeah, that is the main thing I'm struggling with. एंड जब तुम लोग जर्मनी आ रहे थे तो यार तुमने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम लोग एक बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं, लाइफ थोड़ी आसान वहाँ होगी, ऐसा सोचा था? सोचा तो था, but currently I am happy where I am Okay. because of the you can say the calmness. थोड़ा सिटी से दूर, थोड़ा सा जीगन में स्पेशली नेचर में थोड़ा सा you get to have a life, healthy environment. You can go for a walk and stroll. Right. So it's good, I guess. एंड अपॉर्चुनिटी वाइज के हिसाब से फिर कैसा है, मतलब बिकॉज वुड यू कंसिडर जीगन एज टियर 2 या 3 सिटी? Tier 2 city definitely, because यहाँ से क्लोन भी बहुत बाजू में है. And Frankfurt भी we can reach in like 1.5 or 2 hours. And also Gießen. So if you want to go for work, if you want to go for internships, you can go in one day and come back. Yeah. And also Ziegen is quite cheaper than big cities. So around 600-650 is the average monthly. फॉर एवरीथिंग, Yeah, for एकोमोडेशन, फूड, accommodation, इंश्योरेंस, yeah. मिसलेनियस. और अगर तुम्हें कुछ करना होता है तो तुम बड़े शहर जाते हो, जैसे कि कोलोन चले जाते हो. है. जैसे ये सामने एक पब है, you go at Friday night. हाँ. And also there is one club near Gießen, so we can go there. But yeah, if you want to like party or if you want to do something else, you can go to big cities. It's very close from here. Right, Like Cologne से तुम कहीं पे भी जा सकते और तुम्हें लगता है कि यार जॉब मार्केट पिछले 1 साल में 1.5 साल में थोड़ा इफेक्ट हुआ है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, लाइक इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू गाइस डायरेक्टली? डू यू फील दैट? Yes, I do feel that. There's a lot of crunch in the job market right now. Some of the companies who have a posting, they don't hire new people. It's just for the internal hiring that they have to make job postings to just internally rehire people. So some of the times, even if you apply, within a day you get rejected
projections. I'm not sure if it is a human sitting there and going through. Doubtful, but yeah, there's a job situation. जब तुम लोग आए होगे तो एक इम्प्रेशन लेके आए होगे जर्मनी को लेके, यार क्या लाइफ होगी ऐसे वैसे। फिर तुमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे इंटरनेट पे, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर इमेजिनेशन, राइट? बट यहाँ जब आए सबसे बड़ा शॉकिंग क्या चीज लगी तुम्हें कि यार ये क्या है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा क्या था? For me, people here greet even like when you walk, even when you sit, even when you just strange person just say Saying hello, hi. hi, good morning. It's या like- एलिवेटर में जा रहे हो या बाहर आ even, रहे हो, yeah. That's a cultural shock for me. बट अभी तू यूज्ड टू हुआ कि नहीं? 2 Yeah, साल yeah, बाद? I'm used to. तू भी बोल देता है, even hi. yeah, 1.5 year back when I went to India, like whenever they're waiting, hello, hi. Even to my friends, I was saying hi. That thing happened with me. हाँ, मतलब अपने इधर तू ऐसा हर छोटे बात के लिए थैंक यू बोलेगा ना अगर, तो Yeah. लोग बोलते क्या हमको कल्चरल शॉक लगेगा। ज्यादा अंग्रेज मत बन, ठीक है? Yeah, exactly. अपने लिए थोड़ा फॉर्मेलिटी करना, वो फॉर्मेलिटी में आ जाता है, राइट? ये बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है। लाइक आई थिंक थैंक यू और सॉरी इज ऑलमोस्ट Yeah. ऑन एवरी कॉन्वर्सेशन इट कीप्स गोइंग। वही मैं कह रहा हूँ, राइट राइट राइट। और क्या शॉक लगा तेरे को? मेन नॉट शॉकिंग बट यू कैन से कल्चरल शॉक थोड़ा सा है कि पीपल आर वेरी कंसिडरेट अबाउट अदर्स इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ साइड वॉक यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इफ समवन इज पासिंग बाय यू नीड टू गिव द साइड टू देम मेक श्योर यू आर इन ऑन अ पेडेस्ट्रियन वॉक नॉट इन द साइकिल लेन सो दैट्स important. I think other example also could be like जब आप escalators पे हो तो you always stand on the right side, Yeah. because left hand side वाला जो है वो fast track lane होता Yeah, है, that's true. तो आप unconsciously even though you did not intend आप खड़े हो जाते हो बस ऐसे रेलिंग पकड़ के, और पीछे लोग कोई बैग लेके चूल घूम करते हुए लेते नहीं है जल्दी, वो है ना वेट करते हैं कि तुम हट जाओ। लाइक तुम्हें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुझे दिख नहीं रहा क्या, मतलब तेरे बॉडी के रेडियस में नहीं दिख रहा कि तू इम्पैक्ट कर रहा है दूसरे लोगों को। आई थिंक इट्स एन अनस्पोकन थिंग यार, लॉट ऑफ थिंग्स वर्क ऑन अ, मेरे को लगता है मेंटल कम्युनिकेशन केव्स पे, Yeah, that's इवन व्हेन दे ड्राइव कार्स, राइट? लाइक दिस इज हाउ, लाइक इधर हॉर्न कोई नहीं बजाता है, लिटरली कोई नहीं बजाता है। सबसे पहला तो फुटपाथ पे मींस यू व्हेन यू जीब्रा क्रॉसिंग पे तुम क्रॉस कर रहे हो ना, वो रुक जाएंगे तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए सबसे शॉकिंग था क्योंकि इंडिया में कभी कोई नहीं रुका है मेरे लिए। We have to wait. अब मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी जाएगी फिर जाऊंगा, लेकिन वो Once what happened with me in Cologne, Ferrari stopped for me to pass by. I was like, my God. Oh my God! तू बोला रहेगा अरे भाई तेरे को तो चढ़ाना चाहिए था मेरे पे। So this was a really. Okay, what about you? Yeah, I thought that German people will be more open, like to friendly. Like yeah, they are like hi, hello, yes, but to make German friends is a bit more difficult. वो entry barrier बहुत Yes, ज़्यादा high yeah. Not shy. They are not that open for conversation. They're conservative. They're like they like to stay. Yeah. मुझे लगता है कि रीजन टू रीजन पे भी डिपेंड करता है। आप थोड़ा ना ईस्ट जर्मनी जाओगे ना तो वहाँ पर ये तो बहुत ट्रू है। मतलब वेस्ट जर्मनी में बिकॉज यार अगर आप हिस्ट्री भी देखो थोड़ी, इट हैज ऑलवेज बीन एन इंटरनेशनल, पीपल आर लिटिल बिट मोर वेल्दियर, दे हैव मोर देन बेसिक्स हियर, और उनको यहाँ के मतलब वेस्ट जर्मनी में लोगों को इंटरनेशनल लोगों के साथ थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहा है। जब आप ईस्ट जर्मनी जाओगे थोड़ा लाइक टियर 3 टाउन्स या 2 टाउन में, इट्स हार्ड टू गेट एक्सेप्टेड। आई वुड एग्री ऑन फुली ऑन दिस, ठीक है? यू विल देन लिमिट योर सोशल सर्कल, अपने मोस्टली इंडियंस में रह जाते हैं, राइट? विच इज नॉट बैड बिकॉज मेरा भी बहुत बड़ा इंडियन सर्कल रहा है, अभी भी है, एंड दे ऑल आर किलिंग इट इन देयर लाइफ, एंड दैट्स ऑल्सो गुड पार्ट अबाउट लिविंग इन विद इंडियंस ऑल्सो। दे आर वेरी, बिकॉज हम बाय नेचर बहुत कंपेरेटिव है, राइट? Yeah, exactly. And there is a huge community of Indians who support each other. Exactly. So if you have any problems, you can just I would 100% just ask, and you will get replies instantly. बट यार मैं बताऊं कि एट द एंड ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अपने लोग ही आके Yeah, 100%, आपको बचाते हैं, 100%. या कुछ चाहिए तो अपने लोग ही आपको आएंगे। स्टार्टिंग में वही काम आते हैं, मतलब व्हेन यू कम हियर फॉर फर्स्ट मंथ दे विल हेल्प यू विद रैट हाउस और अकोमोडेशन मेरे नहीं है साथ तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट डे। क्या हुआ था? जब मैं फ्रैंकफर्ट पे हम लैंड कर रहे थे, हमने जस्ट लैंड किया था एंड वी डिडंट नो अबाउट एनीथिंग। तो हम 3 लोग थे और हमारे साथ इतने बड़े बड़े 14 बैग समथिंग, एंड पता ही नहीं था कि टैक्सी कैसे करना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें से। तो तब हमें वहाँ पे एक सरदार जी मिले, तो उन्होंने हमारे लिए बड़ी टैक्सी मंगवाई। वो बोले आप रुको इधर, हम आपके लिए मंगाते हैं। इट्स लाइक दिस सिंपल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब आप इनिशियल डेज में एक नए देश आए हो जहाँ भाषा नहीं बात करते हो आप, यू आर इमोशनली वेरी हैवी,
राइट? अभी आप Yeah. घर वालों को छोड़ के आए हो और ऐसा कोई हाथ रखे तो भाई प्यार करना चाहिए। Yeah, that's true. दैट्स नाइस यार। ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस हुए तुम्हारे कुछ? आई थिंक दिस इज गुड यार। कूल गाइस। तो एक बहुत फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन था। ऑफ कोर्स ऑन अ कॉन्ट्ररी ऐसे मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं इसी देश के बारे में कि व्हाई पीपल आर लिविंग आल्सो, राइट? नो कंट्री इज परफेक्ट। आई थिंक एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंडिविजुअल। और अगर आज हमने अच्छी बात करी और कल जाके कुछ गलत एक्सपीरियंस हो गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस रेसिज्म हो गया, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन struggling with their jobs, salaries, a lot of people are struggling with the housing crisis, a lot of people are struggling with the financial structures this country has and bureaucracy it has. तो वो सब तो यार of course अपने जगह पे है, but once you get through all of that problem, I think life is pretty Yeah, pretty relaxed much good. as a student. Yeah. Having said that, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना and I'll see you guys next time. Bye bye. Right. Bye.